آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہ زیب جیلانی۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے لیے پولنگ 7 مئی بروز اتوار ہونا قرار پائی ہے، مگر اس پہ تفصیلی بات درکار ہے۔ اس سے پہلے ذرا سا مشرق وسطیٰ میں جاری پیش رفت کا جائزہ لے لیں۔ جی اچھا، امریکہ میں آپ شاید جانتے ہوں کہ ایک قانون ہے وار پاورز ایکٹ 1973، جس کے تحت صرف کانگریس کو یہ حق ہے کہ وہ جنگ کا اعلان کر سکے۔ صدر کے پاس یہ حق نہیں ہے۔ اگر صدر کوئی جنگ شروع کرتا ہے، جیسا شروع کرنے سے پہلے اس نے پہلے کانگریس سے بات کرنی ہوتی ہے اس قانون کے تحت، اور اگر فوج بھیج بھی دی تو 48 گھنٹوں کے اندر اندر کانگریس کو ایک ریٹن رپورٹ بھیجنی پڑتی ہے، اور اس کے بعد 60 دن ہے۔ 60 دن کے بعد اگر کانگریس نے جنگ کا اعلان نہیں کیا تو وہ جنگ روکنی پڑے گی آپ کو۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ اس میں چور دروازے بھی بڑے ہیں کہ آپ 60 دن پہلے بند کر دیں تو آپ کو اپروول کی ضرورت نہیں ہے، یا تو پھر آپ کہیں کہ یہ جنگ ہی نہیں ہے، جیسے کہ ٹرمپ نے کیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہ تو ایک اسکرمش ہے، ایک شارٹ ٹرم ایکسکرژن ہے، اسپیشل ملٹری آپریشن ہے۔ کس نے کہا ہے کہ یہ جنگ ہے؟ رائٹ۔ لیکن اب کیا ہوا ہے کہ 4 بار ٹرمپ کے مخالفین نے کوشش کی ہے کہ وہ کانگریس ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز میں ایک قرارداد پیش کریں کہ آپ اس قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور اس جنگ کو روکنا چاہیے۔ 3 دفعہ یہ ناکام رہی کوشش۔ 4تھی بار کل کی ہی بات ہے، یہ بل یہ ریزولوشن قرارداد اپروو ہو گئی ہے۔ 215 اراکین نے اس کے حق میں ووٹ دیا اور 208 نے اس کی مخالفت کی۔ انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ کم از کم 4 ریپبلکنز نے بھی اس میں ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا، جن میں ریپریزنٹیٹو تھامس میسی اور اس طرح کے اور لوگ بھی تھے۔ اچھا، اب کیا اس کا مطلب ہے کہ جنگ رک جائے گی؟ نہیں، کیونکہ ٹرمپ صاحب کے پاس ایک ویٹو بھی ہے، اور جو بل 2/3 اکثریت سے نہ منظور کیا جائے اس کو آپ ویٹو کر سکتے ہیں۔ اگر 2/3 میجورٹی سے پاس ہوا تو پھر یہ بائنڈنگ ہوتا ہے۔ اب کیونکہ یہ 2/3 میجورٹی ہے تو 50-50 ہے تقریباً، تو یہ نہیں ہوا۔ لیکن یہ پہلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل ریبیوک ہے امریکہ کے اندر ٹرمپ کی جنگ کے بارے میں، اور یہ اس وقت آتی ہے جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب اکثریت جو ہے امریکن شہریوں کی وہ اس جنگ کے خلاف ہے۔ پچھلے مارچ میں جب لوگوں سے پوچھا گیا تو تقریباً 54% لوگوں نے کہا تھا کہ سر یہ جنگ، اس جنگ میں ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ اب وہ تعداد 60 تک پہنچ گئی ہے، اور اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پہلے اگر 15% ریپبلکنز اس جنگ کے مخالف تھے، اب وہ تعداد 22% تک پہنچ گئی ہے۔ اور اوور آل اگر آپ امریکن شہریوں سے پوچھیں تو 61% کا کہنا ہے کہ اس جنگ سے فائدہ کم ہوا ہے اور نقصان زیادہ ہوا ہے۔ اب ٹرمپ کی ہم بات کر رہے ہیں۔ جی شاہد، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ میں موڈ شفٹ ہو رہا ہے ایران کی جنگ کے حوالے سے۔ یہ جو ووٹ ہے اس کی سگنیفیکنس علامتی ہے ابھی، کیونکہ یہ لیگلی بائنڈنگ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو سیکنڈ سٹیپ ہے وہ سینٹ کا ہے، اور سینٹ میں ہم جانتے ہیں کہ 53 آؤٹ آف 100 جو ہے وہ ریپبلکنس ہیں، وہ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ابھی میں ٹرمپ کا بیان دیکھ رہا تھا کہ جن 4 ریپبلکنس کی آپ نے بات کی، کانگریس مین کی جنہوں نے ان کے ساتھ ووٹ دیا، تو ٹرمپ نے ایز ایکسپیکٹڈ ان کو کھری کھری سنائی ہے کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا، آپ کتنے ان پیٹریوٹک لوگ ہو، آپ کی حب الوطنی پہ انہوں نے انگلی اٹھا دی ہے۔ مطلب ہر جگہ دیش دروہی بیٹھے ہوئے ہیں یار، کیا کریں۔ اچھا، ٹرمپ کے بیانات کی یہ بات ہو رہی ہے تو ایک اور بیان آیا ہے جو مجھے تو کافی مزیدار لگا، پتہ نہیں آپ لوگوں کا کیا خیال ہوگا۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کل کویت پر شدید بمباری ہوئی ہے، اور کویت کے ایئرپورٹ کی جو مناظر ہیں وہ تو آپ نے دیکھے ہیں، ایک بار پھر دیکھ لیں۔ تو آج ٹرمپ سے یہ پوچھا گیا اوول آفس میں ہی کہ جی کیا اس کا مطلب ہے کہ جنگ دوبارہ شروع ہو گئی ہے؟ کیا آپ دوبارہ جنگ شروع کریں گے؟ آخرکار آپ کے اتحادیوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ تو ٹرمپ نے کہا کہ دیکھیں، اس دنیا میں ہر ایک چیز کی کوئی وجہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے ان پر شدید بمباری کی، اب ظاہر ہے کہ وہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے بھی ایک جوابی کارروائی کی، لیکن یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے یار۔ بڑے بڑے جنگوں میں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، آپ لوگ کیوں اتنا ٹینشن لے رہے ہو؟ صحیح۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کویت اور بحرین میں اس کو کیسے دیکھا جائے گا۔ شاید وہ سوچیں گے کہ چلیں ایک اور 200-300 بلین کا اسلحہ خرید لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ رویہ تبدیل ہو۔ ایسا نہیں ہونے والا۔ اب ووٹس کی ہم بات کر رہے ہیں تو آج اقوام متحدہ میں ایک بہت ہی مزیدار ووٹ ہوا۔ جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی جو سیکیورٹی کاؤنسل ہے اس میں 15 ممبران ہیں، جس میں
परमानेंट मेंबर्स हैं, मुस्तकिल हैं, फ्रांस, यूके वगैरह वगैरह, और 10 हैं जो 2 साल की मुद्दत के लिए इलेक्ट होते हैं, रोटेट होते हैं। अच्छा, इस साल क्या हुआ कि 2 इस तरह के स्लॉट्स खाली थे और जर्मनी, ऑस्ट्रिया और पोर्चुगल एक बड़ी कंपटीशन में थे, और तारीख में पहली बार जर्मनी को शिकस्त का सामना करना पड़ा और सोने पे सुहागा इस शिकस्त का ऐलान जर्मनी के साबिक वजीर खारजा एना बेरबॉक साहिबा को करना पड़ा। Number of votes obtained, Portugal 134. Austria 131. Germany 104. जी, तो अच्छा, ये वही एना बेरबॉक हैं जो जब जर्मन फॉरेन मिनिस्टर थी तो इन्होंने बाकायदा जस्टिफाई किया था कि गजा के स्कूल्स और हस्पतालों पर बमबारी करना जायज़ है क्योंकि आखिरकार दहशतगर्द इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। जर्मनी का एक लफ्ज़ है, जर्मन ज़बान का एक लफ्ज़ है शेडेनफ्रॉयड, जिसका मतलब है आप दूसरी की मुश्किलात देखकर आपको ना थोड़ा सा मज़ा आता है। तो आई थिंक कि ये परफेक्ट लफ्ज़ है इनकी स्पीच देखने के बाद। जर्मनी के जो हाजिर सर्विस फॉरेन मिनिस्टर हैं जोहान वादेपुल, उन्होंने इस सीट पर बैठना था और भाई ने बहुत काम किया था। वो खुद न्यूयॉर्क गया, जो 80 मिनिस्टर्स और एम्बेसडर्स हैं उनके लिए पूरी दावत की, खाने खिलाए, ड्रिंक्स पिलाए, लेकिन फिर भी उनके साथ नहीं, बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। और फिर उसने ये भी कहा, बड़े मतलब मुरझाए हुए थे, जाहिर है, उन्होंने कहा कि यार जाहिर है कि 2 वजूहात हैं कि हम क्यों हारे हैं। एक तो क्योंकि हम घुस के ना हम यूक्रेन की सपोर्ट कर रहे हैं और रूस को ये बात पसंद नहीं आई। अच्छा, वो एक अलग बात है कि ऑस्ट्रिया और पोर्चुगल भी यूक्रेन की सपोर्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ रूस ने कुछ नहीं किया। फिर उन्होंने कहा कि और हाँ, जाहिर है कि जो लोग नहीं चाहते कि हमारी जो एक तारीखी जिम्मेदारी है इजराइल के लिए की तरफ जो हम उनकी सपोर्ट करते हैं, वो भी शायद हमें थोड़ा सा नुकसानदेह साबित हुई हमारे लिए। ऑस्ट्रिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने एक बड़ी मज़ेदार बात की। लोगों ने उनसे पूछा कि यार लोगों ने आपको क्यों वोट दिया? उसने कहा कि सिर्फ इसलिए कि हम जर्मनी नहीं हैं। मतलब अफसोस की बात है, चमाट है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा, जहाँ तक जर्मनी की सपोर्ट है, एक छोटा सा पॉइंट जरा कि हम जानते हैं कि जर्मनी यूएन को फंड करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है, और अभी मैं देख रहा था कि उन्होंने दबे अल्फाज में अब धमकी दी है, बिल्कुल ट्रम्प की तरह, कि यूएन की फंडिंग पे फिर हमें भी नजरसानी करनी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल। तो जर्मनी का जो एक स्टैचर रहा है इंटरनेशनल अफेयर्स में, यूएन के अंदर भी आप देख सकते हैं कि उसको कितना शदीद धचका लगा है। हम यूएन पे बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि एक नाकारा इदारा है, कुछ नहीं करता, ऐसा है वैसा है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू जनरल असेंबली, वहाँ मेजॉरिटी जिन मालिक की है वो इस तरह से अपने आप को असर्ट कर सकते हैं कि जर्मनी जैसा मुल्क जो है उसको एक बहुत ही क्लियर मैसेज गया है आज। बिल्कुल। अच्छा, अब जर्मनी को ये धचका मिला भी क्यों है? आज एक और वोट हुआ है, तीसरे वोट पे बात करते हैं। यूरोपियन यूनियन में अक्सर वोट होते रहते हैं कि यार ये जो इजरायली वज़ीर हैं, वज़रा हैं, और ये जो इनके जो दहशतगर्द आबादकार हैं, इनके खिलाफ इन पर हमें पाबंदियां लगानी चाहिए। तो जब भी ये वोट होता है, और इस दफ़ा क्या हुआ है कि जर्मनी ने कहा कि नहीं, आप मतलब बाकियों पे लगा सके, आप बेजालिल स्मोट्रिक पर नहीं लगाएंगे। और चेकिया जो है, उन्होंने कहा कि नहीं, ना सिर्फ बेजालिल स्मोट्रिक पे नहीं, आप बेन गवीर पे भी लगाएंगे, वो हमारे बड़े करीबी साथी हैं। तो शायद ये वजह है कि जर्मनी का ग्राफ थोड़ा सा नीचे जा रहा है। जहाँ तक स्मोट्रिक साहब की बात है, तो जितने भी मगरबी ममालिक में इजराइल के हामी हैं, वो हमेशा कहते हैं कि यार ये बंदा बहुत बुरा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी इजराइल की हुकूमत बुरी है या नाउज़ुबिल्लाह इजराइल की अवाम बुरे हैं। तो ज़रा क्या ये बात सच है? ज़रा देखते हैं कि जब बेजालिल स्मोट्रिक जाके अवाम से मिलता है तो किस तरह की रिसेप्शन मिलती है उन्हें।
आप देख सकते हैं कितना अनपॉपुलर है, मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई माइकल जैक्सन या जॉन लेनन से मिलने जा रहे हैं लोग। बहरहाल अगर हम अब बात करें इजराइल से आते हैं हम लेबनान में, तो आज की बड़ी खबर लेबनान से ये है कि इजराइल, लेबनान और अमेरिका साथ बैठे हैं और उन्होंने कहा है कि जी बिल्कुल ये जो जंग बंदी है ये जारी रहेगी और हम जो कुछ पायलट सिक्योरिटी जोन्स बनाएंगे लेबनान में, जहां पर बाकायदा हिजबुल्लाह के किसी भी गुरिल्ले का दाखिला मना होगा, उसे इजाज़त ही नहीं होगी। आपसे पूछेंगे कि आप हिजबुल्लाह में है, वो कहेगा हाँ, आप कहेंगे आप साइड पे हो जाए। अब जाहिर है कि उन्होंने ये भी कहा है कि हम तीनों भाई जो हैं हम अहद करते हैं कि कोई बाहर के मुल्क या किसी नॉन स्टेट एक्टर को ये इजाज़त नहीं मिलेगी कि वो लेबनान के मुस्तकबिल को यरगमाल बनाए। ओके, जाहिर है कि इसमें कोई जिक्र नहीं हुआ कि इजराइल जो 20% लेबनान पर काबिज है वो वापस जाने के मूड में है या नहीं, क्योंकि ये बात हो रही है किसी फोर्थ पार्टी की। हाँ, आप तो भाई हैं यार, आपको तो वो तो रिकंस्ट्रक्शन में हिस्सा लेगा, वो तो रिकंस्ट्रक्शन में हिस्सा लेगा। और जाहिर है कि उन्होंने ये भी कहा है कि जी हिजबुल्लाह को अपनी अटैक्स रोकने चाहिए। हिजबुल्लाह ने कहा कि कोई सीन नहीं है बॉस, कोई सीन नहीं है, जब तक एक इजरायली फौजी भी लेबनान की सरजमीन पर रहेगा हम हमारी हमले जारी रहेंगे। और आज इसी सिलसिले में एक और ख़बर मज़ेदार ये आई है कि इजराइल की जो नॉर्दर्न कमांड, मतलब जो इंचार्ज है पूरे लेबनान के थिएटर के, मेजर जनरल रफ़ी माइलो जनूबी लेबनान के एक गांव का दौरा कर रहे थे और जैसे ही वो अपनी गाड़ी से निकले एक FPV ड्रोन डायरेक्ट जाकर उस गाड़ी को हिट किया, वो पूरी गाड़ी तबाह हो गई है। इसकी जान बच गई, लेकिन इससे ये चीज़ साबित होती है, अच्छा ये हुआ है कुछ हफ्ते पहले, लेकिन आज इजराइल ने ये खबर रिलीज़ की है, लेकिन इससे ये साबित होता है कि कितनी कड़ी नज़र है हिजबुल्लाह की इनकी सारी तमाम नकलो हरकत पर। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अक्सर हम मुत्तहिदा अरब अमीरात के बारे में बात करते हैं और आजकल ये काफ़ी अफवाहें फैली हुई हैं कि हो सकता है कि मोहम्मद बिन जायद अल नयान जो हैं उनको शायद हटाया जाए या कुछ उनका बुरे वक्त शुरू होने वाले हैं। इनकी ज़ाहिर है कि तस्दीक नहीं की जा सकती, अफवाहें ही हैं। लेकिन आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है कि पहली बार शायद मुत्तहिदा अरब अमीरात के तमाम शहरियों को और रिहायशियों को एक ईमेल गई है या एक मैसेज गया है कि कितना अच्छा हो कि आप हमारे जो सरबराह हैं उनके साथ उनकी बैत करें और हाथ में हाथ मिलाकर हम सब कहते हैं कि इनसे बेहतर कोई सरबराह हो ही नहीं सकता। ये एक स्टेट्समैन हैं जो जुर्रत और बहादुरी के साथ फैसले लेते हैं, गाइडिंग लाइट इन डेडिकेशन सर्विस लव ऑफ द कंट्री। और मतलब बहुत लंबा एक स्टेटमेंट है, आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ लें। थोड़ा सा वैसे नॉर्थ कोरिया की बू आती है इसमें से, लेकिन बहरहाल ये वॉलंटरी है। अगर आपने इस पर दस्तखत नहीं की तो उम्मीद है कि आपकी रेजिडेंसी वीज़ा कैंसिल नहीं होगी, लेकिन गारंटी लाइफ में किसी चीज़ की नहीं होती जी। ठीक है, मेरा ख्याल है कि वो हुकूमत जो है ना, जवाब में जो लोग साइन अप कर रहे हैं उनको एक सर्टिफिकेट भेज रही है। अच्छा, वो बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे लगाया है, उस पे आपका नाम लिखा है। बिल्कुल, ज़रार खोड़ जो हैं उन्होंने उनको भी ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। मैं तो अपनी गाड़ी के पीछे वाली शीशे पे लगा दूं। बैत का सर्टिफिकेट। अगर कोई छोड़ता रोकेगा मैं कहूंगा तुम जानते हो मैं कौन हूं, मैंने सर्टिफिकेट है मेरे पास। बहरहाल एक वक्फा लेते हैं और फिर चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान।